Hello everyone, very good morning. I hope you all are doing very well. Okay, so whatever you are doing. We were doing the chapter 3 separation of substances of NCRT class 6 science, right? So, we have completed the theory chapter up to this summary. Okay, today we will do concept map of the complete chapter. Okay, that will be helpful for your quick revision, and we will do exercises also and some extra questions as well as MCQs from this chapter. All right, so let's get started. So first let's continue with the concept map. All right, so here we can draw the concept map. Concept map, or you can say mind map. Okay, both terms are used for the these kind of map. So yes, the topic is separation of substances. So यहाँ पे हम topic लिख लेते हैं separation of substances. All right, so this is our topic now. So we can separate the substances based on various properties. Like first kind is if we have solid mixture. Okay, so what kind of method we can use if we have solid mixture? Okay, we can write it like this. So what we have, one is hand picking, then sieving, we can use it for solid, even thrashing and the winnowing. So various methods are, one is for solid is hand picking method, जो हम स्टोन और अदर इम्प्योरिटीज अपने राइस एंड पल्सेस से निकालते हैं व्हेन one component of is different in color, size and shape, and even the quantities of impurities is less. So at that time we can use the hand picking का एग्जाम्पल क्या रहेगा? एग्जाम्पल हम यही लिख लेते हैं, एग्जाम्पल राइस प्लस stones. तो ये है एग्जाम्पल ऑफ हैंड पिकिंग. Second method for solid mixture is we can use sieving process. Okay, sieving means when one of the component is smaller in size. Okay, when there is a difference in the sizes of the two components. Example is when we sieve wheat bran to separate bran from it. व्हीट फ्लावर को हम सीव करते हैं टू सेपरेट ब्रान. तो एग्जाम्पल इज ब्रान प्लस फ्लावर. तो ये टू कंपोनेंट हम सेपरेट करते हैं. थर्ड मेथड ऑफ सॉलिड मिक्सचर इज ओके, यहाँ भी हमारे टू मेथड हो जाएंगे. वन एज द थ्रेसिंग हमने कहाँ पे पढ़ा था? जहाँ पे wheat grains separated from the stalks. So example is grain from stalks. Wheat grain from stalks. Then we can use the threshing method. Another method is winnowing method. If you remember the winnowing जहाँ पे हम ब्लोइंग ऑफ एयर यूज करते हैं टू सेपरेट द लाइटर पार्ट, जो भी आपका लाइटर कंपोनेंट होगा. एग्जाम्पल इज हस्क प्लस ग्रेन. ऑल राइट, इफ यू वांट टू सेपरेट हस्क एंड ग्रेन then we can use the winnowing process when one of the component is lighter as compared to another one. So winnowing, sieving, threshing, हैंड पिकिंग. सो ये फोर्थ है हमारे सॉलिड मिक्सचर के लिए. देन इफ वी हैव सॉलिड लिक्विड मिक्सचर. ओके, इफ वी हैव सॉलिड लिक्विड, ओके, इसको मिक्सचर रहने देते हैं, सॉलिड लिक्विड. सो वी हैव
sedimentation, evaporation, condensation, decantation, and the filtration. So one is the, we can write here, one we have sedimentation. Sedimentation जहाँ पे सेडिमेंट हो जाता है वन ऑफ द हैवियर पार्टिकल. एग्जाम्पल हमारा है डर्ट एंड मडी वाटर. एग्जाम्पल डर्ट प्लस मडी वाटर. ओके. सेकेंड वन इज द evaporation and the condensation. So second one is the evaporation and condensation. So हम evaporation and condensation हमने यूज किया था जहाँ पे we want to separate the common salt and water. Example is salt plus water. Okay. See, यहाँ भी वाटर है, यहाँ भी वाटर है, बट यहाँ पे जब डर्ट है इट मीन्स व्हेन मिक्सचर इज heterogeneous एंड द सॉलिड एज द सॉलिड कंपोनेंट इज हैवी. तो यहाँ पे सॉलिड हैवी भी है और हेट्रोजीनियस है, मीन्स यूनिफॉर्म सॉल्यूशन नहीं बन रहा, पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है. एवेपोरेशन और कंडेंसेशन हम तब करते हैं जब जो आपका सॉलिड इसमें है दैट इज नॉन वॉलेटाइल. अगर हमारा सॉल्ट भी इवेपोरेट हो जाता है, ये वॉलेटाइल आपका होता है कि जो इजीली एवेपोरेट हो जाए. नॉन वॉलेटाइल मीन्स दैट डू नॉट रेडिली एवेपोरेट एट द normal temperature. So evaporation and condensation we use when one solid present in the liquid is non-volatile. Okay. And sedimentation we use when mixture is heterogeneous and solid constituent is heavy. Other we have decantation. So we can write here decantation. सो डिकेंटेशन हमने कब यूज किया था? व्हेन हैवी सॉलिड कंपोनेंट सेटल एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर. हमने सेडिमेंटेशन के बाद डिकेंटेशन यूज किया था कि आपका जो हैवी कंपोनेंट है दैट सेटल्स एट द बॉटम, और हमने उस कंटेनर को टिल्ट करके जो अपर लिटिल बिट क्लियर वाटर था उसको सेपरेट किया था. सो वी यूज दिस मेथड फॉर द सेपरेशन ऑफ सैंड प्लस वाटर. ऑलराइट. Next we have the filtration process. So इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं. So filtration हमने कब यूज किया था? When one of the component dissolve in the solvent. Okay. Example is, कहाँ पे हम इसे यूज करते हैं? कॉमन सॉल्ट प्लस सैंड को सेपरेट अगर हमें करना है तो हम फिल्ट्रेशन कि वन कंपोनेंट यहाँ पे सॉल्ट जो है वाटर में डिजोल्व हो जाएगा और हम फिल्टर करेंगे तो सैंड सेपरेट हो जाएगा. दैन जो सॉल्ट सॉल्यूशन बन गया वाटर एंड सॉल्ट, उसको हम एवेपोरेशन से सेपरेट कर लेंगे, वाटर एवेपोरेट हो जाएगा. अगर हमें उस वाटर को भी अलग से वी वांट टू सेपरेट वाटर, देन वी यूज़ द कंडेंसेशन. और कंडेंसेशन के बाद जो लिक्विड वाटर हम कलेक्ट करते हैं उसको डिस्टिल्ड वाटर भी कहते हैं, बिकॉज दैट इज़ वेरी मच प्योर फॉर्म ऑफ द वाटर. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ऑलराइट. सो दिस इट इज़ द कॉन्सेप्ट मैप, और इसके बाद हम करने वाले हैं एक्सरसाइजेस. ओके. सो दिस इज़ द quick overview. Next we have the exercises. So exercises में first is, why do we need to separate different component of a mixture? Give 2 examples. Okay. सबसे पहले तो why do we need to separate the component? So ये हमने बहुत ही starting में किया था चैप्टर के कि we need to separate the component because of few reasons. So reasons आपके हो सकते हैं, either you want to remove the unwanted impurities फ्रॉम द सब्सटेंस. जो अनवांटेड इम्प्योरिटीज हैं लाइक राइस एंड पल्सेज में आपके अगर स्टोन हैं, डस्ट हैं, हस्क हैं, दैट आर द अनवांटेड. सो यू वांट टू सेपरेट दोज. सेकेंड, इट मे बी लाइक टू रिमूव द सब्सटेंसेज दैट आर अनसेफ और यू कैन से हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ. सॉरी.
सो फॉर एग्जाम्पल राइस में ही जो स्टोन होंगे दैट इज हार्मफुल फॉर अस. ओके, सो वी वॉन्ट टू सेपरेट द हार्मफुल कंपोनेंट ऑल्सो. थर्ड रीजन, to obtain the pure substance by removing the other substances. कि हमें प्योरिटी चाहिए है. वी वॉन्ट टू सेपरेट द इम्प्योरिटी सो दैट वी कैन हैव ओनली द प्योर सब्सटेंस फॉर द यूज. फोर्थ रीजन होता है टू सेपरेट टू डिफरेंट कंपोनेंट्स. दोनों ही यूजफुल हैं बट हम दोनों को सेपरेटली यूज करना चाहते हैं. तो टू सेपरेट द टू डिफरेंट यूजफुल कंपोनेंट्स. ओके, तो भी हम सेपरेशन प्रोसेस यूज करेंगे. इसका एग्जांपल है कि टू यूजफुल कंपोनेंट्स लाइक कर्ड या मिल्क से जो हम बटर सेपरेट करते हैं. सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ लास्ट स्टेप टू सेपरेट द टू यूजफुल कंपोनेंट्स. इसके एग्जांपल्स हम लिख सकते हैं. वन एग्जांपल इज लाइक ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टॉक्स. लाइक थ्रेसिंग, हार्वेस्टिंग के बाद जब हम थ्रेसिंग प्रोसेस यूज करते हैं तो हम ग्रेन को सेपरेट करते हैं सो दैट वी कैन कंज्यूम ग्रेन. ओके, इन फॉर फर्दर प्रोसेसिंग लाइक उसका व्हीट फ्लावर बना सकते हैं, दलिया बना सकते हैं. एज सच हम उसको यूज कर सकते हैं. सो ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टॉक, सेपरेटेड फ्रॉम स्टॉक्स. सेकेंड एग्जाम्पल, milk or curd is churned to separate the butter. So milk or curd is churned to separate butter. What is winnowing? Okay, and where is it used? So winnowing क्या होता है? winnowing होता है कि जो सेपरेशन मेथड्स हैं उनमें से वन इज द winnowing. जब आपको लाइटर जो कंपोनेंट है वन इज हैवियर वन इज लाइटर, सो यू यूज द ब्लोइंग एयर to separate the two components. Okay, so we can say like winnowing is one of the method for separation of substance from the mixture, and it is used to separate heavier and lighter component of a mixture by blowing air. And we use, and mostly farmers use this process to separate the lighter husk particle from the heavier grains. All right, so ये हमारा winnowing होता है. Next question is, how will you separate husk or dirt particles from a given sample of pulses before cooking? So what do you think? यहाँ पे हम कौन सा method यूज कर सकते हैं? So because this हस्क है हमारे, अगर सिर्फ हस्क को आपको पल्सेस से सेपरेट करना था तो यू कैन यूज विनोइंग ऑल्सो, बट हियर डर्ट पार्टिकल्स और हम कुकिंग से पहले यूज करते हैं तो मीन्स वी हैव अ सैम्पल मीन्स ऑफ स्मॉल क्वांटिटी, सो वी कैन यूज द हैंड पिकिंग मेथड, राइट, जहाँ पे आपके क्वांटिटीज़ कम हैं और जो आपके इम्प्योरिटीज़ हैं लाइक डस्ट एंड हस्क दीज आर differ in the size and shape, so we can use the hand picking method. Next is, what is sieving and where is it used? So sieving क्या होता है, जो हम wheat flour को sieve करते हैं. Okay, so that is the sieving process. So sieving process to filter the component of a mixture of different sizes. sieving हम कहाँ पे यूज करेंगे, जहाँ पे sizes differ करेंगे. Okay, size should be differ, वहाँ पे हम आपका sieving process यूज करेंगे. ओके, इट अलाउज फाइन पार्टिकल टू पास थ्रू द होल्स. ओके, जो पोर साइज होता है फाइन पार्टिकल उससे पास कर जाएंगे एंड वाइल द बिगर इम्प्योरिटीज रिमेन ऑन द सीव. सो नॉर्मली ये हम फ्लावर मिल्स में यूज करते हैं और घरों में हम यूज करते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट पे हम यूज करते हैं टू सेपरेट sand, cement and stones. Next question is, how will you separate sand and water from their mixture? So ये एक्टिविटी हमने यहाँ रीड किया था. सैंड एंड वाटर का अगर हमारे पास मिक्सचर है तो हम कैसे कैसे इसको सेपरेट करेंगे. सबसे पहले तो सैंड एंड वाटर के मिक्सचर को सेडिमेंटेशन के लिए हम रखेंगे और उसके बाद डिकेंटेशन से अपर जो क्लियर वाटर है वो हम सेपरेट करेंगे और उसके बाद
उसको फर्दर सैंड हमें अगर उसमें से रिमूव करना है डिकेंटेड वाटर से, तो उसमें हम फिल्ट्रेशन यूज करेंगे. सो वी कैन से फर्स्ट स्टेप विल बी द टू अलाउ द मिक्सचर टू स्टैंड फॉर सम टाइम इन अ कंटेनर. ओके, इसको हम क्या बोलते हैं? सेडिमेंटेशन. एंड इन दिस सेडिमेंटेशन सैंड settles at the bottom of the container because it is insoluble as well as heavier as compared to water. So this is the sedimentation. So हम इसमें steps लिख सकते हैं कि इसमें हम एक तो sedimentation method apply करेंगे, decantation, and next one is the filtration. Okay, so third step में, so after sedimentation pour the upper layer of water to the another container. So उसको हम क्या कहेंगे? Decantation. Then final step is we can also use the filter paper to remove the fine particles of sand. जो हमने decantation किया उसमें उसको हम फिर filter कर सकते हैं for the more fine particles को separate करने के लिए. So that is the filtration process. Question 6. Is it possible to separate sugar mixed with water with the wheat flour? If yes, how will you do it? अगर हमारा sugar and wheat flour mix हो गया है, then हम कैसे करेंगे? So अगर हमारा sugar and wheat flour mix हुआ है, तो हम दोनों को sieving से separate कर सकते हैं, because जो sugar आपका होता है उसके particles heavier होते हैं, wheat flour fine particles होता है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं by sieving process. So wheat flour आपका sieve से नीचे आ जाएगा और sugar particles because ये larger in size है, ये sieve के ऊपर रह जाएगा. How would you obtain clear water from a sample of muddy water? अगर आपके पास muddy water है तो उसमें से आप clear water कैसे लेंगे? So इसके लिए हमें वही आपके 3 स्टेप सैंड एंड वाटर था, तो इसी तरह हम मडी वाटर के सैंपल से सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड द फाइनल इज द फिल्ट्रेशन, जिसमें हम फिल्टर पेपर यूज करेंगे. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 वी हैव द fill in the blanks questions. Okay, so fill in the blanks. First is the method of separating seeds of paddy from its stalks. So grain और स्टॉक को सेपरेट करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? थ्रेसिंग. ओके, सो दिस इज द थ्रेसिंग मेथड. रिमेंबर दिस पॉइंट. व्हेन मिल्क cooled after boiling, okay, is poured onto a piece of cloth, the cream is left behind on it. This process of separating cream from milk is an example of. इसको हम क्या कहेंगे? कि हमने मिल्क को बॉयल किया, उसको कोल किया, उसको क्लॉथ पे हमने डाला और मलाई, क्योंकि मिल्क आपका स्मॉल पार्टिकल्स हैं वो निकल जाएगा और जो मलाई है वो आपके उसके फिल्टर उस क्लॉथ पे रह जाएगा. सो दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेशन क्रीम फ्रॉम मिल्क इज नोन एज फिल्ट्रेशन. ये फिल्ट्रेशन है. ओके, अगर हम इसको एजिटेट करते, स्टर करते और इससे बटर सेपरेट होता तो उसको हम कहते चर्निंग प्रोसेस, बट दिस इज द फिल्ट्रेशन प्रोसेस. सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ सॉल्ट. हम कैसे लेते हैं सी वाटर से? कल ही हमने ये किया था कि स्मॉल शैलो पिट बनाए जाते हैं जिसमें वाटर होता है. जब भी जहाँ भी वाटर होगा वो इवेपरेट हो जाता है और जो आपका सॉलिड कंपोनेंट है जो नॉन वॉलेटाइल होता है, बिकॉज ये इजीली इवेपरेट नहीं होता, सो ये हम सेपरेट कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ एवेपोरेशन. ऑलराइट, impurities settled at the bottom when muddy water was kept overnight in a bucket. So the clear water was then poured off from the top. मीन्स डिकेंटेशन किया या हमने सेडिमेंटेशन किया था, फिर poured off कर दिया टॉप लेयर को. सो डिकेंटेशन. द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन यूज्ड इन दिस एग्जाम्पल इज कॉल्ड. सो दोनों ही आ जाएंगे, सेडिमेंटेशन एंड decantation, right? So that's it. So next question is true or false. So a mixture of milk and water can be separated by filtration? No, not at all. दोनों ही ये इसमें से पास हो जाएंगे. A mixture of powdered salt
and sugar can be separated by the process of winnowing? No, इसके लिए हमारा जो impurities हैं lighter and heavier component होने चाहिए. Separation of sugar from tea can be done with filtration. नहीं, ये इससे नहीं होगा क्योंकि शुगर टी में डिजोल्व हो चुका है. सो फिल्ट्रेशन से आपके टी लीव सेपरेट हो जाएंगे, शुगर सेपरेट नहीं होगा. ऑलराइट. ग्रेन एंड हस्क कैन बी सेपरेटेड विद द प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन. इसके लिए हम थ्रेसिंग, ग्रेन एंड हस्क के लिए तो हम विनोइंग प्रोसेस यूज करते हैं. सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स. So lemonade is prepared by mixing lemon juice and sugar in water. All right. So you wish to add ice to cool it. Should you add ice to the lemonade before or after dissolving sugar? In which case would it be possible to dissolve more sugar? Okay. So इसका कहने का है कि हमें अगर आइस उसमें ऐड करनी है तो हमें किस स्टेप पे ऐड करनी है, शुगर डिजोल्व करने से पहले या बाद में, और किस टाइम मीन इन विच केस टू डिजोल्व मोर शुगर. तो ये हमारा क्वेश्चन बनता है. हमने जब अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन पढ़ा था तो हमने देखा था कि अगर सैचुरेटेड पॉइंट आ जाए मीन्स वी कांट ऐड मोर सॉल्ट. ओके. सो इफ़ वी हीट इट, सो उसके बाद थोड़ा सा अनसेचुरेटेड हो जाता है और उसमें स्मॉल क्वांटिटी और ऐड कर सकते हैं. तो इसका अपोजिट होगा कि जब आपका टेम्परेचर लो है, कम टेम्परेचर अगर कर दिया, कूल अगर कर दिया, तो उस पर भी आपकी जो सोल्यूबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएंगे. मीन्स हाई टेम्परेचर पे सोल्यूबिलिटी इंक्रीज हो रही है, लो टेम्परेचर पे सोल्यूबिलिटी डिक्रीज हो रही है. सो इट मीन्स हमें आइस ऐड करने से पहले शुगर ऐड डिजोल्व करनी है ताकि वो मोर क्वान्टिटी ऐड हो जाए, डिजोल्व हो जाए. ऑलराइट. सो इट मीन्स वी शुड ऐड शुगर बिफोर एडिंग ice because sugar dissolve in warm water more quickly as compared to cold water. So we can dissolve more sugar in warm water. अगर हम ice ऐड करके फिर sugar dissolve करेंगे तो less quantity will be dissolvable. तो we can say that we should add sugar before adding ice. So यहाँ पे हम लिख सकते हैं we should add sugar before adding ice. Okay, because sugar dissolve in warm water more quickly as compared to the cold water. So अगर हम warm या normal water में dissolve करेंगे तो more sugar can be dissolved. So it was exercises. Next we have the extra questions from this chapter. Some are directly related, some are somehow indirectly related to this chapter. So first, which of the following process uses evaporation? So evaporation के लिए making of paneer, no. Separation of salt from water. So separation of जो salt है, so that is by the evaporation process. All right. Which of the following is method used to separate potatoes from tomatoes? So potatoes and tomatoes को तो हम hand picking से भी कर सकते हैं because larger size में है ये आपकी impurities, और impurities भी नहीं कहेंगे. Two components are larger in size. Next is which of the following is a device used to separate liquid from solid? So वहाँ पे अगर liquid को सॉलिड से सेपरेट करना है तो हम स्ट्रेनर यूज करते हैं जो कि हम टी के लिए यूज करते हैं टू सेपरेट द टी लीव्स. सो वेयर डज डिकेंटेशन कम्स इनटू प्ले? गिव टू स्पेसिफिक एग्जांपल्स. सो क्वेश्चन है हमारा कि आपका डिकेंटेशन जो है वो किस लिए यूज होता है. सो डिकेंटेशन हम यूज करते हैं ओके फॉर सेपरेटिंग इनसोल्यूबल सॉलिड और लिक्विड फ्रॉम द liquids. So we can say decantation is used to separate insoluble solids or liquids
ओके। सो सॉलिड्स का जो केस है वो जब मडी वाटर होता है या सैंड होता है वाटर में, लिक्विड जहाँ पे ऑयल अगर हो तो उसको भी हम, क्योंकि वो टॉप लेयर बना लेगा अपर लेयर, सो उसको भी हम डिकेंटेशन से सेपरेट कर सकते हैं फ्रॉम लिक्विड्स। ऑल राइट, सो एग्जाम्पल रहेंगे। फर्स्ट इज रेन वाटर इज ए मड वाटर मिक्सचर एंड द प्रोसेस डिकेंटेशन इज यूज टू प्यूरिफाई इट। सो हम कह सकते हैं muddy water, okay, to separate water from muddy water, okay। सो इसके लिए सेकंड केस इज टू सेपरेट ऑयल एंड वाटर, वो हो जाएगा हमारा लिक्विड फ्रॉम लिक्विड, टू सेपरेट ऑयल फ्रॉम वाटर। सो उस केस में भी हम डिकेंटेशन प्रोसेस यूज कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपन्स व्हेन स्टीम कम्स इन कांटेक्ट विद एन आइस कूल्ड मेटल प्लेट। ये हमने एक एक्टिविटी में देखा था कि स्टीम जब आइस कूल्ड प्लेट के कांटेक्ट में आती है तो क्या होता है, वो कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड वाटर में, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। सो यहाँ पे हम आंसर लिख सकते हैं when steam comes in contact with an ice cold metal plate, so steam condenses, steam क्या हो जाएगा, condense हो जाएगा, steam condenses and turns into liquid water, and turns into liquid water, okay। और इसी लिक्विड वाटर को डिस्टिल्ड वाटर भी कह सकते हैं बिकॉज इट इज़ प्योर फॉर्म ऑफ वाटर। So next question is state the methods that can be used for separating the following mixture. So mixture one is soil है, उड़द and husk. So इसमें हम क्या कर सकते हैं, soil को separate करने के लिए इस mixture से we can use the sieving process. Okay, so we can sieve the mixture. So first is we can sieve. Okay, we can sieve the मिक्सचर। उसके बाद जो रिमेनिंग है उड़द एंड हस्क, सो दीज कैन बी सेपरेटेड बाय द विनोइंग मेथड, ओके। सो वी कैन से उड़द एंड हस्क सेपरेटेड, कैन बी सेपरेटेड बाय विनोइंग, ओके। सो इससे हमारे तीनों कंपोनेंट सेपरेट हो जाएंगे। नेक्स्ट इज राइस ग्राम एंड आयरन फिलिंग। सो इसमें हम क्या यूज कर सकते हैं कि फर्स्ट तो हम मैग्नेट यूज कर सकते हैं जिससे हमारे आयरन फिलिंग्स सेपरेट हो जाएंगे, देन राइस एंड ग्राम। सो इन दोनों को हम यूज कर सकते हैं हैंड पिकिंग और या फिर सीविंग से, बट हैंड पिकिंग भी ओके, बोथ आर ओके। सो फर्स्ट इज मैग्नेट, सो इसमें एक यूज हो जाएगा मैग्नेट to separate iron fillings, okay। Second method we can use the sieving or hand picking. So sieving or hand picking, all right। Methods can be used to separate rice and the gram, can be used to separate rice and gram, all right। ये आपके दाल के लिए, ग्राम इज फॉर दाल। नेक्स्ट इज द फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन। सो फर्स्ट इज peanuts are separated from wheat and peanut mixture, okay। So we have a mixture of wheat and peanut, so how we can separate the peanut? So simply by hand mixing, hand picking, हैंड पिकिंग से कर सकते हैं, और अगर पोर साइज ज़्यादा है तो हम सीविंग से भी कर सकते हैं। वीट का जो साइज है दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द पीनट, ओके। सो वी कैन टेक द अप्रोप्रिएट पोर साइज ऑफ ए सीव जिसमें से वीट आपके सेपरेट हो जाए, ऑलराइट। सो कंपोनेंट्स प्रॉपर्टीज आर रिटेन्ड इन ए, सो जो एक मिक्सचर होता है तो उसमें जो कंपोनेंट की प्रॉपर्टी होती है वो रिटेन होती है,
लाइक व्हीट एंड पीनट मिक्सचर है, तो इसमें व्हीट की प्रॉपर्टीज़ रिटेन रहेंगी और पीनट की प्रॉपर्टीज़ भी रिटेन रहेंगी, तो यहाँ पे आ जाएगा मिक्सचर। सेविंग इज यूज्ड व्हेन कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर हैव, कब हम सेविंग यूज करेंगे, जब उनके साइज क्या होंगे, डिफरेंट हो गए, हैव डिफरेंट साइजेज, तभी हम यूज करेंगे। सेम साइज होगा तो वो दोनों ही उसमें से क्रॉस हो जाएंगे, पास कर जाएंगे। द सेपरेटेड हस्क इज यूज्ड एज, कि जो हमने ग्रेन से या फिर सीड से विनोइंग से हस्क सेपरेट किया है, ओके, तो उसको हम क्या कैसे यूज कर सकते हैं कैटल के लिए, एज ए फोडर। सो ऑयल एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय, ऑयल एंड वाटर को हम डिकेंटेशन से सेपरेट कर सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट इज व्हाट इफेक्ट डज टेम्परेचर हैव ऑन सैचुरेटेड सॉल्यूशन, कि अगर हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन है तो टेम्परेचर का उस पर क्या इम्पैक्ट रहेगा। टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करते हैं तो जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है वो आपका अनसैचुरेटेड बन जाता है, क्योंकि जो सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी वो इंक्रीज हो जाती है एज द टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेज। ऑलराइट, सो हम इसको लिख सकते हैं। First is saturated solution at high temperature becomes unsaturated. So we can write a saturated solution. Saturated means when no more quantity of solute can be dissolved. So saturated solution at higher temperature, okay, becomes unsaturated. Unsaturated means now we can add a little more quantity in it, okay, because solubility होता है जो डिजोल्व करना है वो कंपोनेंट, सो solute solubility increases as the temperature of solution rises or increases, okay, as the temperature of solution increases. Second, अगर टेम्परेचर कम कर दें, ओके, इफ ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन कूल्ड टू ए लोअर टेम्परेचर, तब क्या होगा, तब हो जाएगा कि जो डिजोल्व सॉलिड है वो सेपरेट हो जाएगा एज ए सॉलिड क्रिस्टल्स। क्यों, क्योंकि इसका रिवर्स हो जाएगा कि सॉलिड्स जो सॉल्युबिलिटी वो डिक्रीज हो जाती है एज द सॉल्यूशन कूल्स और एज द टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस। गॉट इट। सो सेकेंड केस में हो जाएगा हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन व्हेन कूल्ड टू ए लोअर टेम्परेचर। सो अ सैचुरेटेड solution at, हम लिख सकते हैं when cooled at a lower temperature, okay, some of the dissolved solute separated, some of the dissolved सॉल्यूट, इसको हम क्रिस्टलाइजेशन भी कहते हैं, ओके। इस प्रोसेस से आपके प्योर एंड इम्प्योर जो सॉल्ट हैं वो सेपरेट किए जाते हैं, ओके, वो हमारे हो जाते हैं सॉल्यूट सेपरेट्स आउट एज सॉलिड क्रिस्टल्स, ओके, ऑलराइट। बिकॉज रीजन क्या रहेगा, because the solutes solubility decreases, okay, it decreases as the temperature of solution decreases, okay। सोल्युबिलिटी हम कह सकते हैं डायरेक्टली कि जो सॉल्यूट की सोल्युबिलिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर।
अगर तो टेम्परेचर आपका राइज कर रहा है तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है, अगर तो टेम्परेचर आपका फॉल कर रहा है, लो जा रहा है, तो सॉल्युबिलिटी आपकी डिक्रीज हो रही है. तो वी कैन राइट हियर, सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सोल्यूट्स solubility is directly proportional to temperature of solution. Okay, in solution, अगर solution में हमें इसकी solubility देखनी हो तो ये directly proportional होती है. Next is, can we separate the flour from the powdered chalk by sieving? क्या हम separate कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते हैं. ओके, क्यों नहीं कर सकते हैं? बिकॉज पार्टिकल साइज ऑफ फ्लावर एंड पाउडर्ड चॉक आर सेम, ऑलमोस्ट सेम, कंपेरेबल हम बोल सकते हैं, साइज आर सेम. सो वी कांट सेपरेट बिकॉज बोथ कंपोनेंट्स फ्लावर एंड पाउडर चॉक दोनों ही उसमें से पास हो जाएंगे. ओ नो, ये नो लिखना था, ये हमने यस कर दी. सो we cannot separate. Okay, so next question is, what causes increased visibility after rain? So yes, rain के बाद आपकी visibility जो है वो increase क्यों हो जाती है? वो इसलिए increase हो जाती है distance object की, क्योंकि जो environment में आपके dust particles है, fine dust particles, so these fine dust particles settles due to the फॉलिंग रेन ड्रॉप्स. ओके, सो जो रेन ड्रॉप उसमें फॉल करती हैं उसकी वजह से डस्ट पार्टिकल आपके सेटल हो जाते हैं सरफेस ग्राउंड पे, और आपका जो विजिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है. नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन. सो फिल्ट्रेशन क्या है? फिल्ट्रेशन हम कब यूज करते हैं? ओके, जब हमको सेपरेट करना हो इनसोल्यूबल सॉलिड को, इनसोल्यूबल सॉलिड को एक लिक्विड से. सो वी कैन यूज द फिल्टर पेपर. ओके, या फिर हम वी कैन यूज स्ट्रेनर, टीज के लिए हम यूज करते हैं. वी कैन यूज क्लॉथ जिसमें हम पनीर को आपका बटर मिल्क है उसको सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं. सो इन फिल्ट्रेशन प्रोसेस सॉलिड इनसोल्यूबल सब्सटेंस इज रिटेन्ड, जिसको हम क्या बोलते हैं, एज रेजिड्यू, एंड लिक्विड जो आपका दैट इज फ्री ऑफ एनी सस्पेंडेड मैटर दैट पास थ्रू एंड कलेक्टेड एज फिल्ट्रेट. ओके, सो ये हमारा फिल्ट्रेशन प्रोसेस हो जाता है. तो टू सेपरेट, इसको हम थोड़ा सा लिख लेते हैं, फिल्ट्रेशन इज टू सेपरेट इनसोल्यूबल सॉलिड. ओके, इनसोल्यूबल सॉलिड्स फ्रॉम अ लिक्विड. और किसकी हेल्प से? यूजिंग, सो इसमें हम यूज कर सकते हैं फिल्टर पेपर. So we can use filter paper, we can use cloth, or we can use strainer. Okay, और other similar devices हम यूज कर सकते हैं. So during this filtration process, so the solid जो होगा insoluble. Okay, solid insoluble substance इज रिटेन्ड. कहाँ रिटेन रह जाएगा? ये फिल्टर पेपर के ऊपर, रिटेन एज रेजिड्यू. ओके, ऑन फिल्टर पेपर. ऑलराइट, एंड सेकंड हमारा जो फिल्ट्रेट क्या होगा? लिक्विड पास थ्रू द, इट passes through the filter paper collected as, okay, filter paper is collected as फिल्ट्रेट. ऑलराइट, तो उसको हम बोलते हैं फिल्ट्रेट. और जो सॉलिड हमारा इनसोल्यूबल फिल्टर पेपर के ऊपर होता है उसको हम बोलते हैं रेजिड्यू. ओके, नेक्स्ट इज वी हैव MCQ क्वेश्चंस. सो MCQs हैं. फर्स्ट इज विनेगर. विनेगर इज ए सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर. ओके, सो व्हाट काइंड ऑफ मिक्सचर इज विनेगर? सो हमने इससे पहले चैप्टर में भी पढ़ा था जहाँ पे सॉर्टिंग ऑफ
मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स था, तो वहाँ पे भी हमने देखा था जो सोल्युबिलिटी होती है एसिटिक विनेगर की वो वाटर में होती है, क्योंकि विनेगर इज ए एसिटिक एसिड इन वाटर। तो ये कैसा होता है, इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर, इट इज़ अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ लिक्विड एंड लिक्विड। ओके, एसिटिक एसिड भी लिक्विड है, ये वाटर भी लिक्विड है। होमोजेनियस मीन्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है आपके जो पार्टिकल्स हैं, बोथ एसिटिक एसिड एंड वाटर के। सो चॉक पाउडर सस्पेंशन इन वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय, तो इसको हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं, चॉक पाउडर सस्पेंशन को हम फिल्ट्रेशन से सेपरेट कर सकते हैं। ओके, सो फिल्ट्रेशन कैन बी यूज्ड, क्योंकि चॉक पाउडर जो है आपका इनसॉल्युबल है, सस्पेंशन है आपका इनसॉल्युबल है। ये आइडेंटिफाई, ये शायद गलत है, आइडेंटिफाई द मिक्सचर फ्रॉम द फॉलोइंग। ओके, मिक्सचर कौन सा, ऑक्सीजन मिक्सचर नहीं है, CO2 मिक्सचर नहीं है, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेज। ओके, सो नेक्स्ट is a solution which cannot dissolve more of a given substance at a given temperature, that is known as saturated solution. And next, the method that is used to obtain pure salt from impure, प्योर से इम्प्योर को सेपरेट करना है तो हम क्रिस्टलाइजेशन करेंगे। ओके, बाकी जो भी प्रोसेस है उनसे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट को सेपरेट नहीं कर पाएंगे। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होती है, क्रिस्टलाइजेशन में क्या करते हैं कि सबसे पहले तो बोथ प्योर एंड इम्प्योर सॉल्ट को डिजोल्व करते हैं, फिर उसको हीट करते हैं, हीटिंग के बाद हम कूल करेंगे। कूलिंग से क्या होता है कि जो आपका क्रिस्टल बन जाते हैं, मीन्स जो आपका इम्प्योर सॉल्ट हमने डिजोल्व किया था, जब उसको हम स्लोली कूल करेंगे तो टेम्परेचर जब डिक्रीज होगा तो जो सोल्युबिलिटी है सॉल्ट की वो डिक्रीज हो जाएगी। सो इट मीन्स इट रिजल्ट्स इन द सॉल्ट मॉलिक्यूल्स टू कम टुगेदर एंड फॉर्म द क्रिस्टल्स। तो क्रिस्टल फॉर्मेशन हो जाएगी, उसके बाद हम उस क्रिस्टल्स को सेपरेट कर लेंगे। और सेपरेट कैसे करेंगे, सेपरेट हम कर लेंगे फिल्ट्रेशन प्रोसेस से, देन वॉशिंग एंड ड्राइंग। सॉल्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर बाय विच प्रोसेस, सो एवेपोरेशन, ये हमने किया था। व्हाट काइंड ऑफ मिक्सचर आर एलॉयज, एलॉयज में हम सॉलिड कंपोनेंट लेते हैं, दोनों सॉलिड होते हैं। एलॉयज क्या होते हैं, ये आपके मिक्सचर ऑफ मेटल्स होते हैं। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में एलॉय को समझें तो एलॉयज आर द मेटेलिक सब्सटेंसेज जो 2 और मोर एलिमेंट से बने होते हैं। लाइक स्टील इज अ एलॉय, स्टेनलेस स्टील इज एन एलॉय। स्टेनलेस स्टील में जैसे आपका होता है आयरन है, क्रोमियम है, निकल है। स्टील में जैसे आपका नॉर्मली इसमें आयरन एंड कार्बन से बना होता है, तो आयरन एंड कार्बन बोथ आर कंपोज्ड ऑफ द सॉलिड। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ मिक्सचर इज ट्रू, तो मिक्सचर के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू है। It is a pure substance? No. Its constituents are not combined chemically. Its constituents do not retain their individual properties. वो retain करते हैं। It is always homogeneous. Always तो homogeneous हम इसे नहीं कह सकते हैं। Okay? So it is not always homogeneous. तो it means second is its constituents are not combined chemically. Mixture में ये chemically combined नहीं होते हैं, बाकी सब false हैं, pure नहीं होता है। ओके, इसको हम सेपरेट करते हैं, रिटेन करते हैं प्रॉपर्टीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द कंपाउंड, आइडेंटिफाई द कंपाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग। सो ऑक्सीजन इज नॉट अ कंपाउंड, एयर इज अ मिक्सचर, CO2, ओके, कार्बन डाइऑक्साइड। इन अ मिक्सचर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स एग्जिबिट, सो कॉन्स्टिट्यूएंट्स में सिमिलर प्रॉपर्टीज नहीं। अगर एक मिक्सचर है उसके 2 पार्ट हैं लाइक हस्क एंड ग्रेन, सो सिमिलर प्रॉपर्टीज नहीं होंगी। ओनली दो प्रॉपर्टीज विच आर कैरेक्टरिस्टिक्स टू द मिक्सचर देयर ओन, तो दे एग्जिबिट देयर ओन प्रॉपर्टीज। द मेथड यूज टू सेपरेट एज डिजोल्ड सॉलिड कंपोनेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, डिजोल्ड अगर सॉलिड कंपोनेंट है तो सॉल्यूशन से उसको हम कैसे सेपरेट करेंगे, एवेपोरेशन से। लाइक सॉल्ट डिजोल्ड है जब आपके वाटर में, या शुगर डिजोल्ड है वाटर में, तो हम उसको एवेपोरेशन से करेंगे। अगर वो अगर डिजोल्व नहीं है, इनसोल्यूबल है, तो हम फिल्ट्रेशन यूज करेंगे, सेडिमेंटेशन, डिकैंथेशन, ये सब हम तब यूज करेंगे जब इनसोल्यूबल। अगर तो वो डिजोल्व है, सोल्यूबल, देन वी कैन यूज एवेपोरेशन।
सेपरेशन ऑफ केरोसिन ऑयल एंड वाटर इज डन बाय डिकेंटेशन. ओके, सो इसके लिए हम डिकेंटेशन यूज करेंगे. कॉटन फाइबर इज सेपरेटेड फ्रॉम कॉटन सीड्स बाय द प्रोसेस ऑफ, इसके लिए स्पेसिफिक टर्म है जेनिंग. ओके, नेक्स्ट इज अ प्योर सब्सटेंस इज मेड ऑफ. सो प्योर सब्सटेंस है, प्योर हम कब कहेंगे, व्हेन इट इज मेड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स और molecules, then only we can say it is pure. To evaporate a liquid into its vapor, so heat the liquid. अब कहाँ तक हीट करना है अगर हमें evaporate करना है तो, above its melting point, below its boiling point, below its above it. So it should be heated below its boiling point. Okay, like water का boiling point 100 डिग्री सेल्सियस है, तो हमें boiling point तक नहीं करना है, उससे कम टेम्परेचर पे फॉर सम टाइम इवेपोरेशन के लिए हमें हीट करना है. बटर इज सेपरेटेड फ्रॉम कर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ चर्निंग, इसके लिए स्पेसिफिक टर्म्स क्या है, चर्निंग. सो व्हाट टाइप ऑफ ए सब्सटेंस इज स्टील. स्टील में क्या है हमारे, बेसिकली इसमें आयरन और कार्बन है. ओके, अलोंग विद सम अदर. सो ये हमारा सॉलिड और होमोजीनियस मिक्सचर है, मीन्स वो यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द मटेरियल डिस्ट्रीब्यूटेड. सो द प्रॉपर्टीज यूज टू सेपरेट टू सॉलिड फ्रॉम ए मिक्सचर बाय विनोइंग इज. तो विनोइंग हम कब यूज करेंगे, व्हेन देयर इज डिफरेंस इन वेट, मीन वन कंपोनेंट शुड बी हैवियर एंड अनदर शुड बी लाइटर इन वेट. सेपरेटिंग द इनसोल्यूबल सस्पेंडेड सॉलिड्स ऑफ वेरियस साइजेस फ्रॉम अ लिक्विड. सो उसको हम क्या कहेंगे, इनसोल्यूबल सस्पेंडेड है, साइज भी डिफर करता है, तो उसके लिए हम फिल्ट्रेशन यूज करते हैं. रेन वाटर इज ए काइंड ऑफ, रेन वाटर हमारा होता है डिस्टिल्ड वाटर, क्योंकि जिस प्रोसेस से जैसे डिस्टिल्ड वाटर बनता है कि वाटर वेपर जब कंडेंस हो जाते हैं तो इट बिकम्स डिस्टिल्ड वाटर. सो सिमिलरली जो रेन वाटर है उसका फॉर्मेशन भी इसी तरह से होता है. ओके, बिकॉज रेन वाटर भी कैसे बनता है, जब वाटर वेपर जो एटमॉस्फेयर के हैं वो कंडेंस हो जाए इनटू लिक्विड ड्रॉपलेट्स ड्यू टू द कूलिंग. ओके, सो जो फॉर्मेशन प्रोसेस है दैट इज सिमिलर टू द डिस्टिल्ड वाटर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डस्ट पार्टिकल्स इन द वाटर कैन बी हेल्प टू सेटल डाउन फास्टर बाय यूजिंग एल्कोहल, शुगर, अलम. अलम क्या होता है, आपका जो अलम होता है उसको हम केमिकली जानते हैं एल्यूमिनियम पोटेशियम सल्फेट. ये होता है आपका एल्यूमिनियम पोटेशियम, सो पोटेशियम सल्फेट. ओके, एंड इसका दिस इज द फॉर्मूला. ओके, सो इसको हम यूज करते हैं एज ए फ्लोक्यूलेटिंग एजेंट. वाटर ट्रीटमेंट, जब वेस्ट वाटर को हम ट्रीट करते हैं, सो हम वाटर में जो कि सस्पेंडेड पार्टिकल जो होते हैं तो उसमें अलम, ये आपका जो एल्यूमिनियम पोटेशियम सल्फेट है उसको ऐड करते हैं. उससे क्या होगा कि जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं वाटर में ना वो क्लम्प टुगेदर हो जाएंगे. ओके, और इसका मतलब वो लार्जर पार्टिकल्स बन जाएंगे जिसको बोलते हैं फ्लोक्स. ओके, और फ्लोक्स आपके ईजीली सेटल डाउन हो जाएंगे. ओके, सो लाइटर कंपोनेंट की बजाय हैवियर कंपोनेंट विल सेटल डाउन मोर इजीली बिकॉज ड्यू टू इंक्रीज देयर साइज एज वेल एज वेट. सो ये हम हेल्प करता है वाटर के क्लैरिफिकेशन और प्योरिफिकेशन में. सो उसमें हम इसको यूज करते हैं. द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ लिक्विड बाय एजिटेटिंग इट विग्रसली. सो वो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, चर्निंग प्रोसेस. जब हम लिक्विड को एजिटेट करते हैं, जैसे हमने कर्ड से बटर सेपरेट किया. सेपरेशन ऑफ ग्रेन फ्रॉम हस्क, तो इसके लिए हम विनोइंग प्रोसेस यूज करते हैं बिकॉज देयर इज द डिफरेंस इन देयर वेट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इज अ compound, heterogeneous, element, homogeneous. So it is a homogeneous solution. So homogeneous solution क्या होता है, जो आपका यूनिफॉर्म मिक्सचर हो जहाँ पे कंपोनेंट्स आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड एट द मोलिकुलर लेवल. या हम कह सकते हैं कि जब कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज हैं वो यूनिफॉर्म हो, कंसिस्टेंट हो थ्रू आउट द सॉल्यूशन. जब हम सॉल्ट को वाटर में मिक्स कर देते हैं तो हम उन्हें अलग अलग नहीं देखते हैं, दैट इज अ यूनिफॉर्म सॉल्यूशन. ओके,
सो इसको हम बोलते हैं होमोजेनियस। हेट्रोजेनियस कब हो जाता है, उसको हम हेट्रोजेनियस सॉल्यूशन को नॉन यूनिफॉर्म सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, जहाँ पे कंपोनेंट्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं, लाइक सैंड एंड वाटर है। ओके, सैंड एंड वाटर है, ये आपका हेट्रोजेनियस है, नॉन यूनिफॉर्म है, और जबकि आपका सॉल्ट एंड वाटर आपका होमोजेनियस सॉल्यूशन है। ऑलराइट, सो it was all about this third chapter of NCERT Science Class 6. I hope आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुए हों आपके कॉन्सेप्ट। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर स्टडी एंड कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।